Good afternoon, students. Students, we started second chapter of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. And by now we discussed about liberals, radicals and conservatives. And then we discussed about the suffragette or suffrage movement that is meant by that means right to vote for women. Then a change in industrial society, it we discussed. And now you see the introduction of several things, new things. And then we discussed the coming of socialism, how socialism came to Europe, and how the autocracy or how the conservatives rule it was over. We discussed so many things. Then we discussed how the support, who gave support to the socialism or who gave support for socialism. Then this was a painting. We saw that a massacre was held in Paris. Okay, then how the Russian Revolution started and who was the king or monarch of Russia. It was Tsar Nicholas II. And then the events from February 1917 to October 1917. It was popularly known as Russian Revolution or October Revolution. Then we came to know about the Russian Empire in 1914 during the time of monarch, means Tsar Nicholas II. It was Russian Empire. Here Germany, Austria-Hungary, France, this is United Kingdom, Italy and several others countries of Europe. Then we discussed about the economy and society, and we came to know that 85% of Russian Empire or Russian population, it was agriculturalists, and only a few were there who worked in factories or somewhere else. Then we came to know that socialism in Russia and how the different parties, political parties, they came up. Russian Socialist Democratic Workers Party and some other political parties, Socialist Revolutionary Party and other political parties, they came up. Then turbulent time means very unwanted time or harsh time, it was there during the revolution of 1905. And who participated? Jihadists participated, workers union association participated and socialist revolutionary participated in the revolution and some other. And how the real wages declined, how the production it declined, everything we read, we discussed. And then a procession was held under the leadership of Father Gappan to get employment and to just make the working hours reduced, to make the working place proper hygiene and some other benefits to be given. For that, a procession was held under leadership of Father Gappan, and where these people, they were attacked by the police and the Cossacks. Cossacks means the personal bodyguards of the king, and nearly more than 100 workers, they were killed and 300 they were wounded, and that's why this incident was known as Bloody Sunday. And then started a series of several revolutions, several massacres and several mishappenings, and then started First World War. And during the First World War, what was the condition of Russian economy, on social front and everything. Now today we will start the topic from the First World War and the Russian Revolution. Well, students, in 1914 this First World War was started. It was started between two blocks, two powers. One is known as Central Power and one is known as Allied Power. First, let me tell you, Central Power comprised
Germany. Austria-Hungary was at that time, it was considered as one country, and Turkey. It was one side. These three countries, they were one side, and France, Britain and Russia. Later Italy and Romania, they joined. They were considered as allied power because each country had a global empire, because all these countries, they acquired, they have conquested, they had conquested several other countries in Africa, in Asia, and that is why they started, or they wanted to capture more territories. That is why they started this world war. So this world war was not only fought in Europe, but it was fought in the world. That is why it is known as world war. In Russia, let us start with Russia. In Russia, the war was initially means shuru mein, popular, and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया, दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज ऑफ डूमा, क्योंकि जार ने तो कंसल्ट करने से मना कर दिया था डूमा के साथ कि मैं लड़ाई के ऊपर कोई कंसल्ट नहीं करूँगा, बट सपोर्ट वॉर थिन, इसीलिए उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी. बट इवन देन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई का मतलब है, लेकिन फिर भी रशिया के लोग जर्मनी से मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे. इट कैन बी सीन, कैसे पता लगा, इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया में एक बहुत बड़ा सिटी था, उसका नाम ही बदल दिया, जो कि एक जर्मन नेम था पेट्रोग्राद, और उसको किस बात पर बदल दिया गया, पेट्रोग्राद उसका नाम रख दिया. द जारिना अलेक्जेंड्रा, जर्मन्स ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स, स्पेशली एक मोंक मीन्स एक साधु, कार्ल रासपुतिन, जिसका नाम रासपुतिन था, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर. इसने लोगों में इतना जागरूकता भर दी, इतनी वो कर दी कि ऑटोक्रेसी मीन्स जो राजशाही थी वो अनपॉपुलर होगी, क्योंकि उसने लोगों का साथ नहीं दिया. द फर्स्ट वर्ल्ड, हियर यू सी द जर्मन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अ ह्यूज क्राउड इज सिटिंग हियर. द imperial Russian army came to be known as the Russian steamroller. One word, for one word you write here, underline this. It was the largest armed force in the world when this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries. तो इतनी बड़ी राजा की सेना होने के बावजूद भी राजा ने जब इनका साथ नहीं दिया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने राजा का साथ छोड़ के और रेवोल्यूशनरीज़ का साथ देना शुरू कर दिया, और इसी की वजह से जारिस्ट पावर कलेप्स, जारिस्ट की पावर बिल्कुल कलेप्स हो गई. Now let's move. The first world war on the eastern front differed from that of the western front. मतलब दोनों तरफ से वर्ल्ड वार स्टार्ट था, ईस्ट की साइड से भी और वेस्ट की साइड से भी, लेकिन दोनों तरफ लड़ाई का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था. इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस. ट्रेंचेस होता है खो, जो खो बनी होती हैं, जो समुद्र में अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है. स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस. इन द ईस्ट armies moved a good deal and fought battle leaving large casualties. जो वेस्ट की साइड पे तो आर्मीज़ लड़ाई कर रही थी समुद्र की तरफ से, और जो कि किसके साथ मिलके, अलोंग ईस्टर्न फ्रांस के साथ स्टार्ट होके, और ईस्ट की तरफ से आर्मीज़ ने अंदर ही अंदर बहुत लड़ाई कर रखी थी और बहुत सारी लोगों को मार गिराया था. डिफीट वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, क्योंकि कभी कोई देश में डिफीट हो रही थी, कभी कोई देश हार रहा था, बिल्कुल शॉकिंग था और डिमोरलाइज था, लोगों को बिल्कुल हताश करने वाला था. रशियाज़ आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. शुरू में तो रशिया की आर्मी बहुत बुरी तरह से हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बिटवीन 1915 एंड 1960s. देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ बाय 1917 एज दे रिट्रीटेड. लेकिन जैसे ही जब वो वापस मुड़ने लगे, द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, तो रशियन आर्मी ने सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, कि जिससे कि जो एनिमी थे उनके वो क्या कामयाब ना हो जाए वहाँ पर रहने के. द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया. लेकिन इसकी वजह से जो क्रॉप डिस्ट्रॉय किया, जो बिल्डिंग तोड़ी, उसकी वजह से लगभग 3 मिलियन मीन्स 30 लाख लोग रशिया में ही रिफ्यूजी हो गए, मतलब उनका घर बार ख़त्म हो गया. द सिचुएशन
डिक्रेडिटेड द गवर्नमेंट। अब इस सिचुएशन का डिसक्रेडिट किसको मिला? गवर्नमेंट को एंड द जार, और राजा को, क्योंकि उसने तो कोई हेल्प की नहीं थी। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार, और सोल्जर्स इस तरह की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू। आपने पहले ही पढ़ा कि रशिया में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, क्योंकि 85% लोग क्या थे? सोल्जर्स थे ना, आई एम सॉरी, एग्रीकल्चर में थे। एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन। अब क्योंकि रशिया के ऊपर शुरू में तो जर्मनी ने कई जगह से कंट्रोल कर रखा था, इसलिए रशिया में दूसरे कंट्रीज से भी सप्लाई नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बाल्टिक सी पर जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था और सारा सामान इस सी के द्वारा रशिया में आता था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. अब 1916 में तो जर्मनी ने यहाँ की रेलवे लाइंस को भी तोड़ दिया। एबल बॉडीड मैन दे वर कॉल्ड अप टू द फोर्स वार। अब जितने भी रशिया के फिर राजा ने कहा कि जितने भी एबल बॉडीड है, मतलब जवान आदमी है, वो वार में भर्ती करें। एज अ रिजल्ट देर वर लेबर शॉर्टेज। इसकी रिजल्ट क्या हुई कि लेबर की शॉर्टेज होगी। एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग असेंशियल, और जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी जो कि असेंशियल थिंग्स प्रोड्यूस करती थी वो भी बंद हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। अब जितना थोड़ा बहुत अनाज उगता था उसका वो ज़्यादातर अनाज आर्मी में भेजा जाने लगा कि सैनिकों को खाना मिल जाए। फॉर द पीपल इन सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। और इसलिए शहरों में रहने वाले लोगों के लिए आटा और ब्रेड बहुत कम हो गए। बाय द विंटर, उसी टाइम पे 1916 में बहुत ज़बरदस्त सर्दियाँ पड़ी। एंड राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। और जो जहाँ से ब्रेड खरीदी जाती थी उन दुकानों पर दंगे फसाद बहुत कॉमन हो गए, बहुत ज़्यादा होने लगे। उसी टाइम क्या हुआ? द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। इन द विंटर्स ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल, अब क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद रख दिया था, दैट वर ग्रिम का मतलब वो तो बहुत भयानक हो गई। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फसाइज द डिवीज़न अमंग इट्स पीपल। जो पूरा लेआउट था, शहर जैसा बना हुआ था, वो बिल्कुल दिखता था कि यहाँ पर लोगों के बीच में डिवीज़न है, उससे बिल्कुल पता लगता था। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। वहाँ पर एक बीच में से नदी है रिवर नेवा, उसका जो राइट साइड है वहाँ पर सारे फैक्ट्रीज और वर्कर्स क्वार्टर्स थे। ऑन द लेफ्ट बैंक, और जब लेफ्ट बैंक किनारे की तरफ वर द फैशनेबल एरियाज़, वो बड़े बड़े लोगों का रहना सहना था। द विंटर पैलेस वहीं पे था एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द डूमा मेट। और वो भी महल था उस साइड जहाँ पर डूमा, ये जो हमारी कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, वो मिलती थी आकर और कोई भी नया डिसीजन लेना है तो। इन February 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो। मतलब इतना जो कभी देखा भी नहीं गया था, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी वहाँ पर होने लगी, इतनी ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ी और फूड की शॉर्टेज हो गई। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट में के जो लोग थे वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को बचाया जाए, बट अपोज्ड टू द जार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द डूमा। जबकि जार चाहता था कि डूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने जार का अपोज किया इसको। तो उस कैसे अपोज किया था आपको पता। 22 फरवरी लॉकडाउन, एक लॉकआउट हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन अब चल रहा है, वहाँ पर भी एक लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री। मतलब एक फैक्ट्री में ताला लग गया, मतलब फैक्ट्रियों में, ऑन द राइट बैंक, क्योंकि आपको पता, आपने पढ़ा, राइट साइड पे ही सारी फैक्ट्री थी रिवर नेवा के। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। उनकी सहानुभूति के लिए, क्योंकि वर्कर्स को काम मिलना बंद हो गया था एक फैक्ट्री में, तो बहुत सारे 50 फैक्ट्रीज़ के लोगों ने स्ट्राइक की। इन मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। दिस केम टू बी कॉल्ड, अंडरलाइन इट, केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे। उसी लिए 22 फरवरी 23 फरवरी को, नेक्स्ट डे 23 फरवरी को इंटरनेशनल वीमेंस डे माना जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रोस्ड। अब जितने भी वर्कर्स ने डेमोन्स्ट्रेट कर रखा था, जो ये जुलूस निकाल रहे थे, इन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स से बाहर निकल के और वो कैपिटल के सेंटर में आ गए, जो नेवस्काय
प्रोस्पेक्ट जिसको नाम दिया गया था। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। अभी तक तो सिर्फ वर्कर्स ही मूवमेंट कर रहे थे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल नहीं थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड, तो वर्कर्स ने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े कोठी विलास जो भी बिल्डिंग्स थी उनको चारों तरफ से घेर लिया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, हालांकि डेमोन्स्ट्रेटर्स को डिस्पर्स कर दिया, खदेड़ दिया वहाँ से, बट दे केम बैक ऑन 24th and 25th। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी, तो उन्होंने तोपखाना बुलवा लिया, एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम। ऑन संडे 25th February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, अब ड्यूमा सस्पेंड कर दी, वो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी, तो पॉलिटिशियंस ने राजा के खिलाफ बोलना शुरू किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्नड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स, अब डेमोन्स्ट्रेटर्स सारे के सारे सड़कों पर आ गए टू ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th of February। पहले तो वो राइट में ही थे, राइट बैंक थे, राइट साइड पे, अब वो लेफ्ट बैंक पे आ गए। ऑन द 22nd द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर ransacked, उनको घेर लिया गया, घेराबंदी कर ली गई। द स्ट्रीट थ्रॉन्ड विद पीपल, पूरी सड़कें गलियां भरी पड़ी थी लोगों से। रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन, हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज्ड। अब तो तोपखाने ने भी मना कर दिया कि हम डेमोन्स्ट्रेटर पर क्या नहीं करेंगे, गोला बारूद नहीं चलाएंगे। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 other regiments mutinied। अब वहाँ पर इसीलिए एक ऑफिसर को मार दिया गया और 3 का भी गला काट दिया गया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ये बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, जो थे तो राजा के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था ना, इसलिए कि वो क्या कह रहे थे कि वर्कर्स को वोट करें, उनको ज्वाइन कर ले। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि वो 4 बड़े बड़े रेजिमेंट्स को, 4 बड़े बड़े ऑफिसर्स को जब मार दिया गया, तो सारी की सारी आर्मी, सारे के सारे सोल्जर्स अब किसके साथ जुड़ गए, वर्कर्स के साथ वहाँ पर इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या बनाई, एक सोवियत मीन्स एक असेंबली, एक काउंसिल बनाई इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। कौन सा पैलेस था वो, उस पैलेस में आके इन्होंने अपनी एक काउंसिल बना ली। दिस वॉज द पेट्रोग्राद सोवियत, इसको अंडरलाइन करना। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। 28 को फिर कुछ लोगों का समूह राजा के पास गया कि हम उनसे बात करते हैं। मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, तो जो मिलिट्री का कमांडर था, जो राजा का सेनापति, उसने कहा कि भाई तुम अपनी पावर को छोड़ दो, एडवाइस क्या, नहीं तो ये मारेंगे। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड, और 2 मार्च को उसने अपना सरेंडर कर दिया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल होता कुछ समय के लिए, टू रन द कंट्री। तो सोवियत लीडर्स ने और डूमा के लीडर्स ने मिलके एक अस्थायी सरकार बना ली, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, थोड़ा टाइम के लिए काम करने के लिए। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सैफ्रेज, and Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। इलेक्शंस हुए यूनिवर्सल एडल्ट सैफ्रेज पर, और एक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और पेट्रोग्राद में अब इसी को ही फेब्रुवरी रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है, जिसमें मोनार्की का एंड हो गया। नाउ आफ्टर फेब्रुवरी क्या क्या हुआ, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वर इन्फ्लुएंशियल इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे और जो इंडस्ट्रीज थे, वो ये चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ही रहे, बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट दे वर्कड टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो लेकिन वो कह रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनानी, क्योंकि प्रोविजनल तो कैसे बनाई गई थी, ऐसे ही नाम ले लेके, तो लेकिन हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनानी है जो परमानेंट गवर्नमेंट होगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, तो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो पहले लगी हुई थी, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, एसोसिएशन नहीं बना सकते, वो सारी रिमूव हो गई। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेटअप, इसीलिए जैसे कि एक सबसे पहले एक यूनियन बनी है
पेट्रोग्राद सोवियत। ऐसे ही देश के अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारी सोवियत बन गई, यूनियन बन गई। वर सेटअप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। लेकिन हर जगह पर कॉमन सिस्टम नहीं था, सबका अलग अलग इलेक्शन का सिस्टम था। इन अप्रैल 1917 आपने पहले ही पढ़ा था, बोल्शेविक लीडर, दो पढ़े थे आपने, एक बोल्शेविक एक मैनसेविक। तो बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, क्योंकि जार ने उसको क्या कर दिया था, भगा दिया था। वो बेचारा स्केप कर रहा था दूसरे कंट्रीज़ में अपने आप को, वो वापस आ गया, रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज द वार, क्योंकि वो तो पहले से ही दूसरे देशों में रहते हुए बोल्शेविक्स के बाकी जो अनुयायी थे और वो पहले ही लड़ाई का अपोज कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उसने सोच लिया था कि 1917 में कि अब सोवियत, अब टाइम आ गया कि सोवियत अपने पावर सारी अपने हाथ में ले ले। ही डिक्लेयर दैट द वार बी ब्रॉट टू क्लोज। उसने डिक्लेयर किया 1917 में कि लड़ाई बंद करो भाई, लैंड भी ट्रांसफर्ड, जो राजाओं के, जो नोबेल्स के हाथ में जो थी, बड़े बड़े नोबेल्स की, वो सारी ट्रांसफ़र कर दो, पीजेंट्स को दे दो। एंड बैंक भी नेशनलाइज्ड, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तब तक तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में था बैंक, अब उसको भी गवर्नमेंट के अंडर में दे दें। अंडरलाइन करना, लेनिन थीसिस क्या थे, 3 डिमांड्स कौन कौन सी थी। एक, वार टू बी ब्रॉट टू क्लोज, land to transfer to the peasants and bank to be nationalized. These 3 demands were known as Lenin April thesis. He also argued that the Bolshevik party rename itself as the Communist Party. अब उसने अपनी बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदलने का आर्ग्यूमेंट किया कि हम इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखेंगे, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, कि भाई अब जो हम नए नए बिल्कुल रेडिकल का मतलब था कि सडन, जो हमारे बिल्कुल सॉलिड एम्स हैं उसको इंडिकेट करने के लिए अब हम इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख देंगे। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बोल्शेविक्स के ही वर्कर्स को पता ही नहीं था कि भाई अप्रैल थीसिस मतलब लेनिन ने आके एकदम से क्या चेंज कर दिया। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट, वो तो ये सोच रहे थे कि अभी टाइम नहीं आया है राइट फॉर एन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, कि हम कोई अलग रेवोल्यूशन करें, एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। और वो तो यही चाह रहे थे अभी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट हमने बनाई है, जो अस्थायी सरकार बनाई है, अभी तो हम उसी को सपोर्ट करें। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन जैसे जैसे आगे महीने बीतते गए और जो जो डेवलपमेंट होती चली गई, इससे उनके भी विचारों में बदलाव आ गया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड एंड इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज़ वर फॉर्म्ड। इन इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी वहाँ पर फैक्ट्री की कमेटी बन गई, विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। अब उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के सामने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया कि हमारे वर्किंग आवर्स कम करें, हमारे वेजेस ठीक करें, हमारे को प्रॉपर हाइजीनिक प्लेस मिले, सब कुछ। और उन्हीं को ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बन गई। सोल्जर्स कमेटीज़ वर फॉर्म्ड, आर्मी में भी सोल्जर्स ने अपनी कमेटी बना ली। इन जून अबाउट 500 सोवियत, अब इनको जो कमेटीज़ थी वहाँ पर रशिया में इनको सोवियत का नाम दिया गया था। जून तक, अप्रैल से जून तक लगभग 500 सोवियत्स बन गई, रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल, और सब ने मिलकर एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, एक बड़ी सोवियत बनाई, एक बड़ी कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस्ड, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर तो कम हो रही थी क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट चाह रहे थे ये लोग तो। सो क्या हुआ, एंड द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस, और बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सो इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स, स्टर्न का मतलब होता है एकदम से सॉलिड, रैंडमली उसी टाइम तरीका ढूंढने की, मतलब कि हम कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करें अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट, कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डिसकॉन्टेंट का मतलब है कि जो नाराज़गी की जो भावना फैल रही थी उसको रोकने का इन्होंने कोशिश किया। इट रजिस्टेड अटेम्प्ट्स, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, कि भाई जो वर्कर्स के लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। किसने? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स, अब बोल्शेविक्स ने क्या करना शुरू कर दिया? डेमोन्स्ट्रेशंस देना शुरू कर दिया, लोगों के सामने प्रचार करना शुरू कर दिया जुलाई 1917 में कि क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या कर रही है, गलत है।
एंड स्टर्नली रिप्रेस्ड, और एकदम से उनको दबाना शुरू कर दिया. सो मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली. अब इसीलिए बोल्शेविक लीडर्स को अपने आप को छिपाना भी पड़ गया या वहाँ से भागना पड़ गया. ये देखो आप जुलाई के डेज में कैसे हो रहा था. ए प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी. इनके ऊपर आर्मी, किसने, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो आर्मी थी वो इनके ऊपर फायरिंग कर रही है, और ये बेचारे अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ से भाग रहे हैं. मीनवाइल, लेकिन उसी समय इन द कंट्री साइड, मैंने आपको बताया था कंट्री साइड मीन्स विलेज, पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन अब ऑफ लैंड. लेकिन उधर क्या हो रहा था, क्योंकि नोबेल्स की सारे ज़मीन को कब्जे में ले लिया था, इसलिए पीजेंट्स ने और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने पूरा दबाव डाला, पूरा प्रेस किया कि ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए. लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस. एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पीजेंट सीज्ड लैंड. अब क्योंकि पीजेंट्स के साथ कौन जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, इनसे एनकरेज होके, प्रभावित होके, इनसे प्रोत्साहन लेके पीजेंट्स ने ज़मीन को अपने हाथ में ले लिया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917. दीज आर द मेन इवेंट्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज अक्टूबर रिवोल्यूशन. अभी आ गया द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स. अब तो प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थी. जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए, लेनिन फियर्ड, तो लेनिन को थोड़ा डर हो गया, द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप, कि भाई हम ये तो इनके पास आर्मी है, सब कुछ है, तो ये मिलके दोबारा से क्या लगा देंगे, डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर देंगे. सो इन सेप्टेम्बर ही बिगेन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो उसने फिर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया लोगों के साथ कि हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक अपराइजिंग स्टार्ट करना, विरोध शुरू करना है, विद्रोह शुरू करना है. अपराइजिंग मीन्स विद्रोह. बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, इसलिए जो आर्मी में भी बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, सोवियत लीडर्स जितने भी थी, एंड फैक्ट्रीज, दे वर ब्रॉट टुगेदर, उनको सबको इकट्ठा कर लिया गया. और उसके बाद ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड होता है अपने प्रभाव में लेना, उनको समझाना, द पेट्रोग्राद सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री, सबको मिलके कि तुम एक बात पर एग्री हो जाओ, टू ए सोशलिस्ट सीजियर ऑफ पावर. सीजियर होता है कब्जे में करना, कि सारे मिलके पावर को अपने कब्जे में ले लें. ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड, और इसके लिए एक नई कमेटी अपॉइंट की गई जिसमें मिलिट्री के लोग भी शामिल थे और रेवोल्यूशनरीज भी थे, बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्काई. एक राजा, इसका नेत्र, एक वो लीडर बना दिया जिसका नाम लियोन ट्रोट्स्काई था, टू ऑर्गेनाइज द सीजियर, कि तुम्हें तो अब यही काम करना कि पावर को अपने उसमें कब्जे में ले लेना. द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, और कि किस दिन ये काम करना है इसकी डेट को सीक्रेट रखा गया. द अपराइजिंग मतलब तुमने एकदम से विरोध करना, विद्रोह स्टार्ट कर देना पावर को अपने कब्जे में करने के लिए. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. अब ये अपराइजिंग 24 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया. सेंसिंग ट्रबल, सेंस होता है सूंघ लेना, सम मतलब ध्यान करना. प्राइम मिनिस्टर केरेंस्काई हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. तो जब प्राइम मिनिस्टर, राजा का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का हेड था, केरेंस्काई उसका नाम था, उसने शहर को छोड़ दिया और समन ट्रूप को आदेश दे दिया. एट डॉन आपको पता है जब दिन निकलता है, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लॉयल थे, बिल्कुल उसके पूरे मतलब मानने वाले थे, सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. तो बोल्शेविक्स ने जो अपने न्यूज़पेपर्स निकालते थे, उन बिल्डिंग को प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिलिट्री कमांडर्स ने अपने कब्जे में ले लिया. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन. और ये जो गवर्नमेंट की, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो सेना थी, उनको भेज दिया गया कि टेलीफोन और टेलीग्राफ के ऑफिसेज पर भी अपना कब्जा जमा लें, एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और जो राजा का महल है उसको प्रोटेक्ट करें. इन अ शिफ्ट रिस्पॉन्स, लेकिन उसका एकदम से, स्विफ्ट आपने वर्ड पता, उसका एकदम से रिस्पॉन्स हुआ. द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स. तो जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी, सोवियत ने और सब ने मिल के बनाई थी, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को
ऑर्डर कर दिया एकदम टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि तुम गवर्नमेंट के ऑफिस को सीज कर लो, कब्जे में ले लो, एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, और वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे, जैसे जैसे दिन निकलता गया बढ़ता गया, द शिप, कौन सा, अरोरा, शेल्ड द विंटर पैलेस, वहाँ पर पूरा, शेल का मतलब होता है बिल्कुल जैसे ढक लेना, पूरे इतने सारे जहाज, बड़ा जहाज आ गया और उसने विंटर पैलेस को बिल्कुल शेल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अदर वेसल्स, वेसल्स का मतलब भी वही है जो ये समुद्री जहाज हैं, सेल्ड डाउन द नेवा, जो सारे के सारे नेवा नदी में आ गए, एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और उन्होंने मिलिट्री जहाँ जहाँ पर मिलिट्री थी उन पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया। बाय नाइटफॉल, जैसे जैसे रात आई, द सिटी वॉज अंडर द कमेटी कंट्रोल, पूरी जो कौन सी थी कमेटी, कौन सी थी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में पूरा शहर आ गया, एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस, फिर सभी रशिया की जितने भी, कांग्रेस का मतलब है जितने भी सोवियत बनी थी 500 से भी ज़्यादा, वो सारी की सारी पेट्रोग्राद में उन्होंने एक मीटिंग की। द मेजोरिटी अप्रूव्ड, तो सारे लोगों ने अप्रूव कर दिया द बोल्शेविक एक्शन, कि बोल्शेविक्स जो एक्शन ले रहा है, जो ये कर रहा है, अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, की जो बोल्शेविक्स ने एक्शन लिया है अपराइजिंग का, वो बाकी शहरों में भी स्टार्ट हो जाए। देयर वॉज हैवी फाइटिंग, और एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई किसके बीच में, स्पेशली इन मॉस्को, मॉस्को में किसके बीच में, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स थे उनके, और ये कौन से थे, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाले जो सोल्जर्स थे उनके बीच में। बट बाय डिसम्बर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया, लेकिन ये सारे जीत गए, जो कौन, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के जो पार्टी, वो आर्मी थी वो जीत गई, और पूरे बोल्शेविक्स ने पूरे मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया। ये आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर क्या है, लेनिन एंड ट्रोट्स्काई हैं दोनों विद वर्कर्स एट पेट्रोग्राद। ओके, नाउ चेंजेस, क्योंकि ये अक्टूबर रेवोल्यूशन बोला गया, अब क्या चेंजेस आए अक्टूबर के बाद। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपने ये तो पहले ही पढ़ा था, बैंक टू बी नेशनलाइज्ड और लैंड टू बी गिवन टू पीजेंट्स, सब वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को टोटली अपोज करते थे। सो मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। दिस मींट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, की अब जो परमानेंट गवर्नमेंट बनेगी सारी चीज़ें उसी के हाथ में होंगी। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, ज़मीन सोशल प्रॉपर्टी होगी, एंड पीजेंट्री वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबेलिटी, और पीजेंट्स को अलाउड कर दिया कि जो जो नोबेलिटी के पास ज़मीन है आप उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। इन सिटीज़ बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज, जो आपने देखा था राइट, कौन से, एक तरफ कौन कौन से थे, बड़े बड़े घर थे, अब बोल्शेविक्स ने उन पर कब्जा जमा लिया, और पीजेंट्स को और जो वर्कर्स थे, वर्कर्स को अलाउ कर दिया कि जो बड़े बड़े घर हैं उनको आप पार्टीशन कर लो, उनमें बंटवारा कर लो अपनी अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और किसी किसी को टाइटल्स, जो बड़े बड़े पद मिले हुए थे राजा के अंडर में, उन्होंने उसको बैन कर दिया। टू असर्ट द चेंज, इस चेंज को करने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड, जो सैनिक थे उनकी, जो राजा के अंडर में यूनिफॉर्म, जिस तरीके की यूनिफॉर्म, जिस डिज़ाइन की यूनिफॉर्म पहनते थे वो भी चेंज कर दी, ऑफिशियल्स की भी, आर्मी की भी। फॉलोइंग ए क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट, वहाँ पर एक नया मतलब पूरा एक कंपटीशन रखा गया, और वहाँ पर जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको क्या कहा गया कि एक क्या पहनेंगे, सब लोग हैट पहनेंगे। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड, जो पहले उन्होंने सोचा था कि हम अपनी पार्टी का नाम बदलेंगे, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखेंगे। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस, अब उन्होंने परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस रखे, बट दे फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, लेकिन अभी उनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिली। अगेन इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, तो असेंबली ने, कौन सी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि पहले बनी हुई थी, उन्होंने बोल्शेविक मेजर्स को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, तो लेनिन के, क्योंकि इनके हाथ में पावर थी, इन्होंने असेंबली को डिसमिस कर दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन,
उसने कहा कि उस टाइम तो कंडीशन अच्छी नहीं थी, जल्दी जल्दी से प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो वो यही चाहता था कि एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बने जो कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी। सो इन मार्च 1918 डिस्पाइट ओपोजिशन, हालांकि बाकी पॉलिटिकल अलाइज ने, अलाइज का मतलब है उसके सहयोगी पार्टियों ने उसको अपोज भी किया, लेकिन बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो ये कह रही थी बोल्शेविक्स को या रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को कि हमें जर्मनी के साथ कोई संधि नहीं करनी है, लेकिन बोल्शेविक्स ने फिर भी संधि कर ली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे। एट ब्रेस्ट, यहाँ पर बी कैपिटल है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क इन द ईयर दैट फॉलोड, लेकिन फिर आगे जैसे जैसे अगले सालों में द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी, तो बोल्शेविक्स इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि सिर्फ वही एक पार्टी रह गई टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, क्योंकि अकेली ही रह गई, बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी, यही सबसे पावरफुल पार्टी थी, इसलिए इसी ने ही पार्लियामेंट बनाई। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, अब वहाँ पर एक सिंगल पार्टी रह गया, बाकी पार्टी सब खत्म। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, अब ट्रेड यूनियंस जो अलग अलग यूनियंस बनी थी वो भी पार्टी के कंट्रोल में आ गई। द सीक्रेट पुलिस, अब पार्टी ने, क्योंकि कौन सी पार्टी, ऑल रशियन कांग्रेस, इस पार्टी ने सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका नाम वो चेका, पहले तो उन्होंने चेका रखा और बाद में OGPU, फुल फॉर्म आप यू विल हैव टू फाइंड आउट द फुल फॉर्म ऑफ OGPU एंड NKVD। पनिश्ड, अब जो इन्होंने सीक्रेट पुलिस बनाई थी ये पनिश करती थी दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, जो बोल्शेविक्स की क्रिटिसाइज करते थे। ये भी जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, क्या बने थे, जैकोबिन्स। अब जैकोबिन्स इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि इवन उन्हीं के पार्टी मेंबर्स जो उनको क्रिटिसाइज करते थे तो वो उन्हीं को पनिशमेंट देते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी किसने, ऑल रशियन कांग्रेस ने उन लोगों को क्रिटिसाइज पनिश करना शुरू कर दिया जो उनकी एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड, अब इसके पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने फिर बहुत सारे राइटर्स ने और आर्टिस्ट ने रैली की, बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, क्योंकि ये स्टार्ट तो क्या हुई थी, सोशलिज्म लाने के लिए स्टार्ट हुई थी और भाई देश में बदलाव लाएंगे। बट आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू experiment in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship of party encouraged। लेकिन क्योंकि सब लोग तो सोच रहे थे कि अक्टूबर 1917 के बाद की बहुत सारे चेंज होगा, आर्ट में, आर्किटेक्चर में बदलाव आएगा, लेकिन इन्होंने तो, पार्टी ने तो वही चीज़ कर दी थी, सेंसरशिप कर दी थी, जो भी इनके अगेंस्ट बोलेंगे उन्हीं को ही ये रोक देंगे, उन्हीं को ही पनिशमेंट देंगे। तो आप यहाँ देखो, मे डे डेमोन्स्ट्रेशन इन द मॉस्को इन 1918, तो 1918 में मॉस्को में एक डेमोन्स्ट्रेशन लोगों ने किया। ओके, सो दिस इज अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड, टू व्यूज। यू विल रीड these two views and you will underline the important points and you will write as one word answer questions. Okay, only today we have completed up to here, and tomorrow we will start from the new topic, that is civil war in Russia. By that time, have a nice day and thank